Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Okay. So respiration takes place both in presence of sunlight and in the absence of sunlight in plants. And in presence of sunlight or during the daytime, what happens? Stomatas जो है, they are open. During the day, stomatas are open in the leaves and other green tissues that contains chlorophyll. So this process, this chlorophyll, with the help of chlorophyll, photosynthesis is also in progress. So during the day, stomatas are open, and the CO2 evolved in this respiration is utilized in the photosynthesis. Okay, and oxygen जो है, it is produced during the photosynthesis. It is used for respiration. So during the day, we can say stomatas are there in the leaves. Through it, this respiration takes place. Then what happens during bright light? Rate of photosynthesis is much faster. है ना, फास्ट होता है ब्राइट जब सनलाइट होती है ड्यूरिंग द डे. देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो फोटोसिंथेसिस का रेट फास्टर है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो उससे कम होगा. देयर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरमेंट टू द प्लांट टिश्यूज थ्रू स्टोमेटा, एंड ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द सेल्स. ऑक्सीजन जो है वो सेल से बाहर आता है ना, इन द आउटर एनवायरमेंट थ्रू स्टोमेटा. सो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and release of oxygen, it takes place during the day. Now what happens in the absence of sunlight? During the night, we can say the conditions are just reversed. And during the night, what happens at night? Photosynthesis stops. Photosynthesis stop हो जाता है, and only the process of respiration takes place. Only the process of respiration takes place, and as a result, what happens? O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है, इट डिफ्यूजेस इनटू द प्लांट्स, ये अंदर जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है, इट डिफ्यूजेस आउट. सो इट हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट. ओके, देन इन प्लांट्स देयर इज नो स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट फॉर दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, बट देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस. आपने जब टिश्यूज के बारे में पढ़ा था तब आपने पढ़ा होगा ये इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर द स्पेसेस दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स. है ना, जैसे सेल्स है तो उनके बीच में जो स्पेस होती है सेल्स के बीच में, दिस इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस. ओके, एंड इस स्पेस के थ्रू जो गैसेस जो है वो डिफ्यूज होते हैं इजीली. सिंस प्लांट्स ऑर्गन्स लाइक leaves and stems, they are usually covered with epidermis. epidermis से कवर होते हैं, and exchange of gases जो होता है वो स्टोमेटा और लेंटिसेल से होता है ना, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स. और जो रूट्स है, they have root hair, they are in constant contact with the oxygen in the soil. रूट्स जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होते हैं कंटिन्यूसली, है ना, एंड दे take oxygen by diffusion through the soil. तो अलग अलग वे में इनका जो है वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है वो होता है. तो इन लीव्स it occurs through stomata, in stems it occurs through lenticels, and in roots it occurs through the cells that are in contact with the soil, okay, through the surface of root. So in this way these plants take oxygen and release carbon dioxide in respiration. Now we will see the structure of a stomata. Let's see how it is. You have already learned it. हमने लास्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. तो मैं थोड़ा सा इसको आइडिया दे देती हूँ. स्टोमेटा जो ओपनिंग्स होती हैं इसकी, दे आर कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स. दीज आर द पेयर्ड बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, एंड द इनर वॉल, ये देखो आप, इसकी जो इनर वॉल्स है गार्ड सेल की वो थिक होती है, एंड दे आर लेस इलास्टिक, व्हाइल द आउटर वॉल इज थिन एंड मोर इलास्टिक, इसकी गार्ड सेल की. ठीक है, एंड दिस इज द स्टोमेटल एपर्चर, और जिसको हम कहते हैं ओपनिंग. दीज आर द एपिडर्मल सेल्स. आप देख सकते हो ये सारी एपिडर्मल सेल्स, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट.
So what happens if water flows from the surrounding cells into the guard cell? अगर guard cell में water जो है वो diffuse होता है, the turgor pressure in them increases and they expand, resulting in the opening of stomatal aperture. तो जब वाटर जो है वो एंटर करता है गार्ड सेल्स के अंदर थ्रू डिफ्यूजन, तो वो स्वेल हो जाती है और इसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है. इसके अपोजिट, इफ गार्ड सेल लूज वाटर, वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स टू द सराउंडिंग सेल्स. अपोजिट जब होता है तो वाटर मूव होता है सराउंडिंग में, सेल के अंदर से, एंड इन रिटर्न दिस सेल विल लूज द, व्हाट वी कैन से, लूज द वाटर अमाउंट, और टर्गर प्रेशर जो है इसका वो डिक्रीज होगा. टर्गर प्रेशर विल डिक्रीज, है ना, एंड इट रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर. स्टोमेटा का जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगा जब ये टर्गर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाता है. तो इन दिस वे दिस स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोजेस. Okay, so the gases exchange, that is O2 and कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इनका जब ये एंटर कर जाते हैं अंदर स्टोमेटा के अंदर, देन दिस गैसेस एंटर इनटू द सब स्टोमेटल स्पेसेस. इनके बीच में जो स्टोमेटस के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां पर ये डिफ्यूज होता है थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स का मैं आपको बताती हूँ डायग्राम कैसे, कहाँ पर ये होता है स्पेसेस. So according to the requirement of the plants, then these gases, that is oxygen and carbon dioxide, they are used. Okay, and what is not required, it is diffused out through the guts, stomata. Okay, so just you see, there is another picture. Here you can see. This is the cross section of a leaf. अगर हम leaf को cross section में cut करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है. तो here you can see this is the upper epidermis, this is the lower epidermis. इसमें से जो है gases exchange नहीं हो सकता है because it is hard. So here there are stomatas present, है ना. यहाँ आप ये देख सकते हो, this is the stomata. Okay, so these stomata are there and these are the cells containing lots of chloroplast, and the space, dark space you can see here inside, in between these cells, it is the intercellular spaces. तो स्टोमेटा में से जो गैसेस यहाँ पर एंटर करती हैं तो ये इस इंटरसेलुलर स्पेसेस को फिल कर देती हैं, एंड देन स्लोली दिस गैसेस डिफ्यूज इनटू द सेल्स. ओके, तो इस तरह से ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये गैसेस का एक्सचेंज वहां से होता है सेल्स के अंदर. ठीक है. Before going to the respiratory system of human beings, let's see exchange of gases in animals. Animals जो exchange of gases होता है वो कैसे होता है, we will see some examples. Organs of respiration in different animals. Okay, so in lower animals like जो microscopic animals है, microorganisms जिनको हम कहते हैं amoeba, paramecium, euglena, single cell animal, unicellular microorganisms, then sponges, hydra, spirogyra. These are the lower animals, simple animals, and they do not have any specific organ. उनका कोई भी specific organ नहीं होता है respiration के लिए. In these animals, exchange of gases takes place through the body surface. उनका body surface जो होता है उससे exchange of gases होता है. देन अर्थवर्म, आपको पता है अर्थवर्म जो है इसका जो रेस्पिरेशन होता है वो क्यूटेनियस होता है. क्यूटेनियस मींस थ्रू moist skin. Exchange of gases occurs through skin. It is cutaneous respiration. Then in frog, it respires through skin as well as through lungs. When it is on the land, it uses lungs. When it is in water, it uses its skin. Thus, it shows both cutaneous as well as pulmonary respiration. जो lungs से होता है उसको हम कहते हैं pulmonary respiration. Now, there are some insects like cockroaches, grasshoppers, houseflies. They respire through air tubes. उनकी होती है air tubes या जिनको हम कहते हैं ट्रकिया. ट्रकियल ट्यूब्स होती है और इसका एक पूरा नेटवर्क होता है बॉडी के अंदर, और इसकी जो ओपनिंग्स होती है बाहर की तरफ
They are called as spiracles. Then some aquatic animals like fish, prawn, tadpoles, etc. They have gills. Aquatic जो animals है, they have gills. आपको पता ही है ये. And they have these gills enclosed inside the gill chambers, one on either side of their body. दोनों साइड में बॉडी के वो होते हैं. But in what happens in aquatic animals, the amount of dissolved oxygen in water is low. वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट लो होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. एयर में वो ज्यादा होता है, लेकिन वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है. एंड देयरफॉर ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना. एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ज्यादा होता है, ब्रीदिंग उनमें फास्टर होता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज there is low amount of oxygen dissolved in water. Now let's see the respiratory system in human beings. Respiratory system in human beings consists of nostril, nasal cavity, bronchioles, alveoli, pharynx, lungs, and trachea and bronchi. Okay, so we will see one by one. This is the respiratory system in human beings. So first we will see the nasal cavity. Here you can see. So nostril जो है, nostrils are the nasal openings. Nostril क्या है? Nasal cavity के openings है, through which air is drawn into the nasal cavity. यहाँ से जो है air enter करती है cavity में. The nasal cavity is separated from oral cavity by a bony plate, and nasal cavity has central septum which divides it into paired nasal passages. They are called nostrils, है ना. जो अपना नोज होता है उसमें आपने देखा होगा दो इस तरह के होल्स होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और बीच में एक सेप्टम होता है जिससे कि दो एयर के पैसेजेस वहां पर बन जाते हैं. टू नॉस्ट्रिल्स आर देयर. ओके, एंड दिस नेसल पैसेजेस आर लाइन्ड बाय म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स. इनके जो लाइनिंग्स होते हैं इस पैसेज के, नॉस्ट्रिल्स का जो पैसेज होता है अंदर जाने का, एयर के अंदर जाने का, इट इज लाइन्ड बाय सिलेटेड एपिथेलियम. जो सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, दे हैव सिलिया एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, एंड बोथ म्यूकस एंड सिलिया दे चेक द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स. एयर जो है यहाँ पर फिल्टर होके आती है बिकॉज ऑफ दिस cilia and mucus present in the nasal space. Okay, so in nasal cavity air is warmed and moistened. air थोड़ी warm हो जाती है यहाँ आने के बाद, यहाँ से गुजरने के बाद, और थोड़ी moist हो जाती है. Then this nasal cavity ends in internal nostrils through which air enters into the pharynx. Now this is pharynx जो कि common passage है for air and food, है ना. oral cavity से जो food आता है और nasal cavity जो air आती है उनके लिए ये common passage है. इट लीड्स इनटू ट्रकिया. ये आगे जाकर के ट्रकिया यानी कि विंड पाइप से यहाँ पर कनेक्ट होता है. ओके, और आपको पता है कि एसोफेगस और ट्रकिया जो है बोथ आर हियर. दोनों जो ट्यूब्स है, फूड पाइप एंड विंड पाइप, दे आर हियर. और एसोफेगस जो है इट इज डोर्सल टू ट्रकिया, मतलब ट्रकिया जो है आगे की तरफ है और एसोफेगस जो होता है वो पीछे की तरफ होता है. तो आगे जो ट्रकिया है और पीछे की तरफ जो पाइप होता है वो फूड पाइप होता है. दोनों यहीं पर होते हैं बिकॉज दे हैव कॉमन पैसेज दैट इज फेरिंग्स. यहाँ से फिर फूड और एयर का जो पैसेज है वो अलग हो जाता है. सो व्हाइल स्वैलोइंग द फूड, वहां पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है स्किन की यहाँ, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. दिस वन आप देख रहे हो यहाँ पर. ओके, सो दिस एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड और वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो जब एयर पास होती है विंड पाइप में तब ये एपिग्लोटिस जो है वो फूड पाइप को क्लोज कर देता है. तो इससे क्या होता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में जाने से बच जाता है, वो उसमें एंटर नहीं हो सकता. तो दिस इज फेरिंग्स. देन नेक्स्ट जो है इट इज ट्रकिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकाई. is about 11 centimeter in length and 2.5 centimeter in diameter. This is trachea. Okay, यहाँ पर ऊपर है larynx जिसको हम कहते हैं voice box, and then trachea. Trachea is there. So इसकी जो wall होती है it is provided with C-shaped cartilaginous rings.
यहाँ पर सी शेप के रिंग्स होते हैं, ये पार्ट आप देखो इसका पूरा, यू कैन सी दिस प्रिवेंट्स ट्रकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन इफ देयर इज नॉट मच एयर इन इट। एयर नहीं भी होती है ट्रकिया के अंदर तभी भी ये जो विंड पाइप है ये कोलैप्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस रिंग्स। ट्रकिया इज लाइन इंटरनली बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि हमने अभी देख पढ़ा था कि वो नेजल पैसेज में भी होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। So these two, cilia and mucus, both prevent the entry of dust particles and microbes in this tract. Then trachea runs down the neck and extends into the thoracic cavity. Now this part, हम जहाँ पर lungs होते हैं, heart होता है, this is known as thoracic cavity. ये thorax region होता है, this is the thorax region. और क्योंकि ये organs उस केज के अंदर, रिब केज के अंदर ये कवर्ड होते हैं उससे, इसलिए उसको हम कहते हैं कैविटी. तो दिस इज थोरेसिक कैविटी. ओके, ऑन एंटरिंग इन दिस thoracic cavity, trachea divides into bronchi. आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से वो डिवाइड हो जाता है ट्रकिया. तो दिस इज दिस साइड राइट मेन ब्रोंकस एंड दिस इज लेफ्ट मेन ब्रोंकस. प्लूरल हम इसको कहते हैं ब्रोंकाई. On entering the lungs, the right bronchus divides into 3 bronchi. अब यहाँ से जो राइट साइड में जो ब्रोंकस आता है राइट लंग में, इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रोंकाई. वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है बिकॉज इन राइट लंग देयर आर 3 lobes and in left lung there are 2 lobes. It is bilobe, it is 3 lobed. Okay, and that's why here it is divided into 3 and in left lung it is divided into 2. Okay, because it has 2 lobes. So in this way, this both the branches they enter both the lungs. इसका एक डायग्राम मैं आपको बताती हूँ. Here you can see clearly. So this is larynx, voice box जिसको हम कहते हैं. This is trachea. It gets divided here. Here you can see 3 lobes of lungs: superior lobes, middle lobes, and inferior lobe. Here this is superior lobe and inferior lobe. Now these lungs are covered with this membrane. It is known as pleural membrane. And these both the lungs they are covered in pleural cavity. उस cavity की जो membrane होती है पतली सी, it is known as pleural membrane. Okay, they are, so the lungs are enclosed in the double layer membrane. ये membrane जो होती है वो double layer होती है, उसको pleural membrane भी कहते हैं या फिर pleura भी कहते हैं. The pleural membranes are separated by thin space filled in which the pleural fluid is present. इसके बीच में, इस membrane के बीच में ये double layer होती है और इसके बीच में जो है प्लूरल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन जो है वो अवॉइड करता है, यहाँ पर लुब्रिकेशन का काम करता है. So these are the lungs. Then this bronchus, है ना, bronchus जो है when it enters in the lungs, each bronchus divides and redivides to form these fine bronchioles. यहाँ पर आप देख सकते हो, these are the fine bronchioles, है ना. And each bronchus with all its branches is called bronchial tree. एक ट्री के फॉर्म में ये आपको यहाँ पर दिखता है. तो ऐसे बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं एक लंग में. Each bronchus or each bronchiole ends into the cluster of tiny air chambers. हर जो ब्रोंकियल होती है उसके एंड में, टर्मिनल एंड जो होता है वहां पर आप ऐसे बलून्स के जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो. एंड दीज आर कॉल्ड द एयर सैक्स और दे आर कॉल्ड alveoli. alveoli, है ना. एंड दिस इज alveolar duct. फाइन जो ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकियोल की, दे आर नोन एज alveolar duct. और ये जो सारे alveoli हैं दे आर सप्लाइड विथ फाइन कैपिलरीज. बहुत सारी कैपिलरीज से ये सप्लाइड होते हैं, मींस उसको वो इन alveoli को वो कवर करते हैं. तो ये जो alveoli है, these are the functional unit of lungs. alveoli are the functional units of lungs as these are the actual site for exchange of gases. जो exchange of gases होता है lungs में वो यहाँ पर होता है alveoli में, इसलिए इनको कहते हैं functional units of lungs.
There are about 750 million of alveoli present in the lungs. 750 million के आसपास alveoli present होते हैं lungs के अंदर, which have total surface area of about 100 मीटर स्क्वायर. इतना इसका surface area होता है अगर हम इसको measure करें. And these are covered with a network of capillaries, जैसा मैंने आपको अभी बताया. Okay, so this is the structure of lungs and alveoli. Now here you can see this part you see now. तो ये जो capillaries है ना, capillaries क्या, these are the very fine tubes that carry the blood, है ना. These are also blood vessels. तो इस तरफ आप देख सकते हो arteriole है and इस तरफ venule है. Venule जो है very fine capillary and it has deoxygenated blood, and here in arteriole it has oxygenated blood. तो यहाँ पर जो है gases का exchange होता है. This is the place or this is the site of exchange of gases. Okay, तो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसका mechanism. Okay, let's see the mechanism of breathing. Breathing जो है वो दो steps में होता है, inhalation and exhalation. Okay, so this is the diagram of inhalation. Now what happens here, during inhalation the diaphragm, ये जो diaphragm है नीचे, you can see here, है ना. diaphragm क्या होता है, this is a membrane like structure and it separates the thoracic cavity and abdominal cavity. thoracic cavity और abdominal cavity को ये separate करता है. क्या, ये diaphragm है ना. तो जो मसल्स इसके साथ अटैच होते हैं वो रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी कि एयर को अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम जो है इसके मसल्स रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड थोरेसिक कैविटी जो होती है वो एक्सपांड हो जाती है. दिस कैविटी गेट्स एक्सपांडेड. प्लूरल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है ट्रकिया जहां से एयर एंटर करती है ना. तो ये मसल जो है दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो थोरैक्स होता है, मींस ये जो कैविटी है, इट जस्ट मूव्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव हो जाती है, एंड आउटवर्ड और बाहर की तरफ. आपने देखा होगा जब हम इनहेल करते हैं तो जो अपना रिब केज होता है यानी कि अपना जो चेस्ट का साइज होता है वो बढ़ जाता है, थोड़ा एक्सपांड हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ दिस. तो इससे क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, एंड दिस कॉजेस डिक्रीज इन एयर प्रेशर इनसाइड. यहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है. और हमें पता है कि जो बाहर प्रेशर है एयर का लंग्स के बाहर वो ज्यादा है, तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ एयर. ओके, एज अ रिजल्ट द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स थ्रू द nostrils, trachea and then bronchi. Through the thin walls of the alveoli, oxygen diffuses into the blood and blood then supplies this oxygen to the tissues. This oxygen is then used in the cells for cellular respiration. तो जो exchange of gases actually कहाँ होता है वो मैंने आपको बताया, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो ये जो है ये इनहेलेशन का जो है वो प्रोसेस है. इनहेलेशन में क्या होता है, साइज जो है, वॉल्यूम जो है बढ़ता है लंग्स का और प्रेशर डिक्रीज होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से बाहर का जो हाई प्रेशर है एयर का, उसकी वजह से एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ट्रकिया. ओके, देन इसके जस्ट अपोजिट होता है इन एक्सेलेशन. एक्सेलेशन में क्या होता है आप देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से लंग्स में आ जाता है ना. तो जो थोरेसिक कैविटी है वो नॉर्मल साइज में आ जाती है ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ दिस डायफ्राम, है ना. जब ये रिलैक्स हो जाता है डायफ्राम तो कैविटी जो है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, ओरिजिनल साइज में थोरेसिक कैविटी नॉर्मल साइज में आ जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, रिब मसल्स है वो यहाँ पर नॉर्मल साइज में आ गए हैं, ये मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो रिब केज है वो भी अपनी नॉर्मल जो साइज में वो आ जाता है, और उसकी वजह से एयर जो है इट मूव्स आउट फ्रॉम द
लंग्स, एयर जो है वो लंग्स से बाहर निकल जाती। तो इस तरह से एक्सेलेशन और इनहेलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इन साइक्लिक फॉर्म बॉडी लंग्स के अंदर वहां पर होता रहता है, कंटिन्यूसली इट इज गोइंग ऑन। ब्रीदिंग जो होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, वी कैन नॉट स्टॉप इट। और इसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एक्चुअली वो हम देखते हैं। You can see here one more picture. So this is alveolus, ये alveolus है ये वाला, and these are the capillaries, ये कैपिलरी है जो बिल्कुल उसके कांटेक्ट में है। तो ऐसा कैपिलरी का नेटवर्क हर एक alveolus के सराउंडिंग में होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, यहाँ पर देखो आप, जो रेड कलर का एरो है दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन है, इनहेल्ड जो एयर है इट कंटेन्स ऑक्सीजन। यहाँ से alveolus से वो ऑक्सीजन है, इट इज डिफ्यूज्ड इनटू द capillaries and then it is taken to the different tissues. Okay, then at the same time when we exhale, that time what happens, this deoxygenated blood which is coming in this capillary, मैंने आपको अभी वेन्यूल और आर्ट्रियोल का वो एक डायग्राम दिखाया था जिसमें यहाँ पर जो है deoxygenated blood है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होता है alveolus के अंदर एंड देन इट इज रिमूव फ्रॉम द लंग्स। तो एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो यहाँ होता है कैपिलरी और alveolus के बीच में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now one more thing. When the body size of animal is large, then diffusion pressure alone cannot take care of oxygen that it can reach to all parts of the body, है ना? बॉडी जब मल्टीसेलुलर एनिमल्स में मोस्टली जब एनिमल्स का साइज लार्ज होता है तो डिफ्यूजन के थ्रू ये पॉसिबल नहीं होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दैट्स व्हाई दे हैव दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ह्यूमन बीइंग्स में, and these animals have respiratory pigment that take up oxygen from the air in the lungs and carry it to different tissues which are deficient in oxygen. Okay, तो वो जो पिगमेंट है इन ब्लड, इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, इट इज नोन एज hemoglobin. Okay, so this is the respiratory pigment and it has very high affinity for oxygen, high affinity for oxygen. This pigment is present in the RBCs, red blood cells, red blood corpuscles, RBCs. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence it is mostly transported in the dissolved form in our blood. तो जो hemoglobin है, when it absorbs oxygen, when it picks up oxygen, it is known as oxyhemoglobin. तो oxyhemoglobin जो है ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स, टू द डिफरेंट टिश्यूज इन अवर बॉडी। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया इसका मैकेनिज्म? सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल discuss transportation in human beings. Okay.